The subject of income computation and disclosure standards is intricate. Here is a summary of the topic. Okay, so today we'll be discussing on the ICDS, and specifically we'll be taking two ICDS for today. One is ICDS 2 and ICDS 8. Okay, but before we move into the specific ICDS, let us first understand the background. So section 145 subsection 1 is the act which stipulates the method कि किस पे ICDS लगेगा. So ये दो heads के लिए specify करता है. One is PGBP and one is IFOS. ठीक है ना. ICDS इन्हीं दो heads पे लगेगा, PGBP और IFOS पे, यानी सैलरी, HP और कैपिटल गेन्स पे अपना ICDS नहीं लगेगा. और इसका इनिशियल एप्लीकेबिलिटी आया था 1 अप्रैल 2015 में, बट इसको बाद में डेफर करके 1 अप्रैल 2016 यानी फाइनेंशियल ईयर 16-17 से एप्लीकेबल किया गया था. ठीक है ना. एक नए सेट ऑफ आईसीडीएस 10 नोटिफाई हुए थे, जिसका नाम अभी अपने आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है ना. और इसके लिए एक एग्जेम्पशन लाया गया था कि एनी इंडिविजुअल और एचयूएफ who is not required to get its account audited in the previous year. ठीक है ना. प्रीवियस ईयर टू द ईयर जिसके लिए हम आईसीडीएस का एप्लीकेबिलिटी चेक कर रहे हैं. यानी अगर हम आईसीडीएस का एप्लीकेबिलिटी असेसमेंट ईयर 16 फाइनेंशियल ईयर 16-17 के लिए चेक कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 15-16 में अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का ऑडिट नहीं हुआ होगा तो उसके ऊपर आईसीडीएस एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है ना. एक क्लैरिफिकेशन ये भी आया था कि कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के लिए भी आईसीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, एंड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ओके. अब कुछ एक क्लैरिफिकेशंस आए थे इन टर्म्स ऑफ एफएक्यूज, उसको उसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट अपने डिस्कस कर लेते हैं. अगर कोई केस लॉ और आईसीडीएस में अगर सपोज करिए कि कंफ्लिक्ट होता है तो विच विल प्रिवेल. सो एफएक्यूज में क्लियर कर दिया गया था कि आईसीडीएस केस लॉज को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, इसलिए आईसीडीएस का प्रोविजन प्रिवेल करेगा एफएक्यू केस लॉज के ऊपर. हाउएवर अगर आईसीडीएस और रूल्स में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो कौन प्रिवेल करेगा. तो क्लैरिफिकेशन लाया गया कि आईसीडीएस जनरल नेचर का है और जो रूल्स है वो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस को डील करते हैं. That's why the rules will prevail over ICDS, and without saying act will always prevail over ICDS. ठीक है ना. Now supposedly there are assessees who are following presumptive taxation and are not required to maintain books of accounts. So उनके केस में क्या होगा. So clarification आया कि ICDS is only applicable for computation of income. It is not applicable for maintenance of books of accounts. Maintenance of books of accounts का कोई रिश्ता नहीं है ICDS से. It is only for computation under IT Act, that is ICDS applicability is in picture. That's why in presumptive taxation also turnover के लिए as far as ICDS 3 which is construction contracts or ICDS 4 which is revenue recognition, that will be applicable for computation per se. Maintenance of books of accounts has no relation with again I am saying ICDS. MAT के लिए क्या applicability ICDS का, क्योंकि MAT is calculated on book profits and book profits is based on books of accounts and जिसका कोई connection नहीं ICDS के लिए, इसलिए ICDS will not apply on MAT as well. ठीक है. What will be the provisions of ICDS for banks, NBFCs, insurance companies, etc. So clarification है कि ICDS is applicable on all. जहाँ पे इनके लिए specific exclusions या specific provisions हैं तो वहां पे वो specifically deal होगा, otherwise it will be applicable for all. What shall be the consequence of ICDS non-compliance? So बहुत सिंपल है कि अगर हमारा ICDS non-compliance होता है तो 145 subsection 3 assessing officer को पावर देता है कि वो एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 ऑफ IT Act पास कर सके. ठीक है ना. List of ICDS. So ICDS 1 talks about accounting policies. ICDS ये बगल में AS भी लिखा हुआ है for reference purpose. ICDS 2 talks about valuation of inventories. ICDS 3 talks about construction contracts covered in AS 7. ICDS 4 talks about revenue recognition. ICDS 5 talks about tangible fixed assets. ICDS 6 talks about the effect of changes in foreign exchange rates. ICDS 7 talks about government grants.
ICDS 8 talks about valuation of investments, and मैंने ब्रैकेट में AS 13 में स्टार मारा है, रीजन बिंग AS 13 जो था वो खाली इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्ट मतलब सिक्योरिटीज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स था, बट ICDS 8 में दोनों है, शेयर्स और सिक्योरिटीज मतलब हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स बोथ है. ICDS 9 talks about borrowing costs and ICDS 10 talks about provisions, contingent liabilities and contingent assets as covered in AS 29. ठीक है ना. तो वो अपने आ जाते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज पे. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज क्या क्या चीज को डील करता है? वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट. क्या चीज को डील नहीं करता है? वर्क इन प्रोग्रेस arising under construction contract because that is covered under other ICDS. Work in progress dealt with other ICDS. Shares and securities, क्योंकि मैंने कहा कि ICDS जो 8 है वो शेयर सिक्योरिटीज के स्टॉक को भी डील करता है. ठीक है ना. प्रोड्यूसर इन्वेंटरीज ऑफ लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मिनरल ऑयल्स एक्सेट्रा एंड मशीनरी स्पेयर्स विच इज अगेन कवर्ड अंडर ICDS 5. ठीक है ना. सो ICDS 2 में ओपनिंग इन्वेंट्री को लेके क्या बोला गया है? वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री शुड बी सेम एज प्रीसीडिंग ईयर्स क्लोजिंग इन्वेंट्री. इन केस ऑफ न्यूली कमेंस्ड बिजनेस द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री शैल बी द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री. यानी उसमें ओपनिंग नहीं होगा, जो परचेज कॉस्ट होगा वही होगा. केसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड विद इंटेंट टू कमेंस बिजनेस may remain unaffected due to overriding provisions of section 45(2). ठीक है ना. If partner takes over running business of firm LLP, value agreed with other partners for inter se settlement shall be cost of the partner. ये सब कुछ एक स्टैंडर्ड है, मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूँ. अपने जहाँ पे हिट अपॉन करना होगा, अदरवाइज ये पीपीटी आपके लिए अवेलेबल रहेगा फॉर रेडी यूजेज. इन्वेंट्री टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV whichever is lower. Byproducts, scrap or waste material are immaterial, they shall be measured at NRV. And this value shall be deducted from the cost of the main product. Cost of inventory में क्या क्या include होगा? Cost of purchases, all duties and taxes. AS2 excludes refundable from taxing authorities. यानी AS2 में जो duties और taxes refundable है वो excluded रहते थे, but यहाँ पे लिखा गया है कि it should include all duties and taxes. Cost of services includes labor and other costs of personnel directly engaged in providing the service, including supervisory personnel and attributable overheads. Cost of conversion or other costs to bring the inventories to the present location. किस मेथड में डिटरमाइन हो सकता है कॉस्ट? FIFO मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, रिटेल मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट. ये सब आपको कॉस्टिंग में थोड़ा सा पढ़ाया गया होगा. अच्छा, ICDS में एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो बोलता है कि वेदर और नॉट बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड, द इन्वेंट्री ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म विल बी वैल्यूड एट NRV. यानी एक पार्टनरशिप फर्म अगर डिसॉल्व होता है, चाहे उसको कंटिन्यू कर रहा है कोई पार्टनर या कोई और पर्सन, तो उससे इमटेरियली वो NRV पे वैल्यू होगा. जबकि दो केस लॉज मैंने डाले, एक सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, अगर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे होता है, अगर अकाउंट ऑफ द बिजनेस, इफ द बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड एंड इफ इट इज कंटिन्यूड देन इट विल बी एट द लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ NRV. शक्ति ट्रेडिंग का सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है. यानी सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ के हिसाब से दोनों सिचुएशन वेदर कंटिन्यूड और वेदर डिसकंटिन्यूड में अलग अलग ट्रीटमेंट होता था, बट ICDS दोनों के केस में NRV पे उसको टैक्स करने बोलता है. ठीक है ना. दीज आर ट्रांजिशनल प्रोविजंस. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, टैक्स ऑडिट के क्लॉज 14 में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स दिया गया है, उसका एक स्नैपशॉट यहाँ पे दिया गया है. तो उस हिसाब से अपने को डिस्क्लोजर देना जरूरी है फॉर ईच एंड एवरी ईयर, एंड दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू डिस्क्लोज दिस अप्रोप्रिएटली. ICDS 8. So ICDS 8 deals with both securities held at stock in trade and does not deal with interest and dividend on securities, which is covered by revenue recognition, held by person engaged in insurance business and by mutual funds, venture capitals, banks, etc. ठीक है ना. ICDS came into force with effect from 1/4/16. इसका दो पार्ट है. Part A for valuation of securities held as stock in trade, and Part B for guidance of valuation of securities held by scheduled banks and PFIs. ठीक है ना.
AS13 बोलता था करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एंड इंडिविजुअल स्क्रिप्ट वाइज वैल्यूएशन बोलता था। ICDS 8 में है कैटेगरी वाइज वैल्यूएशन, ठीक है ना। और अनलिस्टेड या थिनली ट्रेडेड सिक्योरिटीज, यानी दो टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, एक जो लिस्टेड नहीं है और एक जो लिस्टेड है बट एक्टिवली ट्रेडेड नहीं है। इन दोनों का इनिशियल कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करना होगा, और अदरवाइज बाकी सबका कैटेगरी वाइज वैल्यूएशन होगा, जिसको 4 कैटेगरीज में ब्रेकअप किया गया है। वन इज शेयर्स, अदर इज डेट सिक्योरिटीज, थर्ड इज कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज एंड फोर्थ इज एनी अदर सिक्योरिटीज नॉट कवर्ड अबव। इसका एक एग्जांपल भी है। सपोज करिए मेरे पोर्टफोलियो एज अ स्टॉक इन ट्रेड में 5 शेयर्स हैं, जिसका की कॉस्ट ए लिमिटेड बी सी डी ई का है, कॉस्ट है 100, 200, 800, 400, 200, टोटल कॉस्ट है 1700, और एनआरवी है ए का 60, बी का 140, सी का 10, डी का 250, ई का 450 और टोटल है 910। तो AS13 के हिसाब से क्या होता था, इंडिविजुअल देखा जाता था, 100 और 60 का इंडिविजुअल 60 लोअर, ऐसे सिमिलरली बी का लोअर 140, सिमिलरली सी का लोअर 10, डी का लोअर 250, ई का लोअर 200, ऐसे करके टोटल 660 उसको रिकॉग्नाइज करता था। बट ICDS बोलता है कैटेगरी वाइज, तो टोटल कैटेगरी का कॉस्ट है 1700 और टोटल एनआरवी है 910, सो 910 होगा। And more often than not, this will lead to higher valuation of inventory and thus higher taxation, ठीक है ना। AS13 बोलता था if an investment is acquired by the way of issue of shares and assets, the acquisition cost should be the FMV of the value of the asset given up, ठीक है। Whereas ICDS 8 बोलता है it should be the fair market value of the asset so acquired, यानी AS13 बात करता था जो शेयर्स हमने दिए हैं उसका वैल्यू लेना है, और ICDS 8 बोलता है जो शेयर्स हमने लिए हैं उसका वैल्यू लेना है। जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमने दिया है, मतलब जो हमारा कॉस्ट है वो तो जो हम दे रहे हैं वो होता है, बट ICDS 8 इज ट्रीटिंग इट एज अदरवाइज, ठीक है ना। AS13 और ICDS दोनों ही बोलते हैं कि प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट एक्चुअल कॉस्ट से डिडक्ट होगा। कुछ एक केस लॉज है जो अदरवाइज बोलते हैं, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। इसका एग्जांपल है, so this is the last example for discussion. So interest rate is at the rate of 12%, interest payable is half yearly, supposedly 31st December and 30th June, and cost of interest bearing securities से 1010, यानी 100 रुपया फेस वैल्यू था और 10 रुपया प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट था, ठीक है, एक महीने का। अब AS13 और ICDS का बोलता है कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी 31/3/15 को है 1010, एडजस्टमेंट टू PL नील। ऑन 30 जून 2016 जब इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है 50 रुपए का, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 10 रुपया कॉस्ट से रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। बट ICDS क्या बोलता है कि हम ICDS और AS13 तो ये बोलता है, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब 1010 में अक्वायर करते हैं तो 1000 रुपये अपना कॉस्ट रिकॉग्नाइज करते हैं, 10 रुपये इंटरेस्ट में एक्सपेंस में डेबिट कर देते हैं, और जब 60 रुपया मिलता है तो पूरा का पूरा 60 रुपया को इनकम रिकॉग्नाइज कर देते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है ना। सो दैट वाज अ स्नैपशॉट